So hello everybody, we are dealing with this third problem in the NCEP 2025 series, and the problem is based on the very famous chapter of physics, rotational mechanics. So let's get started with the problem and we will try to solve it in the least possible time with maximum of concept application. So let's find out what the problem is asking. A uniform solid sphere of radius capital R rolls without slipping on a rough horizontal surface with a forward velocity v of its center. On its way, it suddenly encounters the small step of height 0.2 r as shown in the figure. The angular velocity of the sphere just after the impact is given that the sphere does not bounce back, rather it goes ahead up the step. So these are the things, or these are the set of information which is given to us in the problem. Let's mark out in the problem. So the first information is uniform solid sphere. This is the first important thing for us to understand. So we will go with moment of inertia 2 by 5 mr square. This is the first point of importance for us. Rolls without slipping on a rough horizontal surface, and it is having a forward velocity v. So if it is rolling on a rough horizontal surface, then we can definitely say that at this point it is having a omega which is equal to v by r. Now in the next part, the problem is stating on its way it suddenly encounters the small step of height 0.2 r as shown. So this is the step or the stair which the problem is talking about. So it encounters this step, and over here it encounters the small step of height 0.2 r as shown. The angular velocity of the sphere just after the impact is given that the sphere does not bounce back, rather it goes ahead up the step. So over here we can say that everything which is going to take place over here, be it angular impulse exchange or be it any form of force which is going to be imparted to the sphere or which the sphere is going to impart to the stair, is going to take place at the point P. So this becomes a very interesting point. So as the sphere will come and strike this point, so this is the point where the exchange of forces is taking place. So in case if I want to write angular momentum conservation, so there are few requirements. If I want to write angular momentum conservation, the first requirement which we have is that there must be no net external torque acting on the system. So the net external torque acting on the system must become 0, which is at point P we can say that it is applicable as all the forces are directed towards point P or away from point P. So if we consider the solid sphere and stair as a part of one system, so stair is neither moving before collision nor it is moving after collision. So we can definitely say that angular momentum initial and angular momentum final is going to be conserved about point P. So about which point we are going to conserve is a very interesting problem and very interesting thing to understand. So we are equating it about point P because net torque is balanced at point P. If I were to balance angular momentum conservation say from ground surface, तो ग्राउंड सरफेस से अगर हम लोग करते तो यहाँ पे जो एंगुलर इम्पल्स शेयर होता, इसके वजह से जो एंगुलर इम्पल्स आता जो एंगुलर मोमेंटम में चेंज करवा सकता है, वो हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है उसको कैलकुलेट करने का. तो इसीलिए हम लोग एंगुलर मोमेंटम को पॉइंट पी से अगर अपने कंजर्व अगर कर देते हैं तो ये क्वेश्चन को सॉल्व करना कंपैरेटिवली ईजी बन जाएगा. सो ओवर हियर इसके बाद सवाल कह रहा है कि ये इसके ऊपर चढ़ गया, बाउंसिंग नहीं हुआ किसी भी किस्म का, और फिर ये आगे बढ़ रहा है. और जब आगे बढ़ रहा है तो आपको एंगुलर वेलोसिटी बताना है जस्ट आफ्टर द इम्पैक्ट. जस्ट आफ्टर द इम्पैक्ट भी एक इंटरेस्टिंग बात है कि हम लोग ये समझना चाह रहे हैं कि फ्रिक्शन जो है जो बाद में लगेगा उसको हम कंसिडर ना करें. तो जस्ट आफ्टर इम्पैक्ट आपको बता देना है कि इम्पैक्ट के तुरंत बाद क्या हुआ. इस बारे में कोई चर्चा नहीं किया जाए कि उसके बाद वो प्योर रोलिंग करेगा कि नहीं करेगा, या प्योर रोलिंग करने के लिए और क्या क्या रिक्वायरमेंट लगेंगे, उसके ऊपर चर्चाएं नहीं करनी है. जस्ट आफ्टर द इम्पैक्ट आपको बता देना है. तो अब अगर अपने नेक्स्ट पार्ट पे आए प्रॉब्लम के कि अपने एंगुलर मोमेंटम जब लिख रहे हैं तो हम लोगों को दो किस्म के एंगुलर मोमेंटम का ध्यान रखना है. एक होगा ट्रांसलेशनल एंगुलर मोमेंटम,
एक होगा ट्रांसलेशनल एंगुलर मोमेंटम और एक होगा रोटेशनल एंगुलर मोमेंटम। तो एक हो जाएगा ट्रांसलेशनल एंगुलर मोमेंटम और एक हो जाएगा रोटेशनल एंगुलर मोमेंटम। तो ये दो चीज़ों का हम लोगों को ध्यान रखना है व्हेनेवर वी आर राइटिंग द टोटल एंगुलर मोमेंटम। सो वी नीड टू थिंक इन टर्म्स ऑफ ट्रांसलेशन एंड रोटेशन बोथ। तो अपने इस सिचुएशन को एक बार यहाँ पे इक्वेशन के फॉर्मेट से अगर लिखना स्टार्ट करें तो एल इनिशियल, तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम जो हम लोग लिख रहे हैं, तो इस पॉइंट के अबाउट अगर लिखेंगे तो यहाँ पे इस पॉइंट के अबाउट अगर हम लोग डिस्टेंस मार्क करें, सो दिस डिस्टेंस इज 0.8 r, 0.2 r नीचे निकल गया। तो जो वेलोसिटी का जो लाइन है वो ये हो गया। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से अगर अपने मेजर करेंगे तो 0.8 r है। तो जो ट्रांसलेशनल एंगुलर मोमेंटम अपने लिखते हैं r क्रॉस p, अगर वो लिखा जाए तो वी आर राइटिंग mv 0.8 r, और साथ साथ हम लोग लिख रहे हैं आई ओमेगा। तो आई का वैल्यू हो गया 2/5 mr², और ओमेगा अगर अपने लिखें तो ये हो गया v/r। और अब आता है बात अपने की फाइनल एंगुलर मोमेंटम लिखे। अच्छा, दोनों को हम लोगों ने ऐड कैसे कर दिया? तो सर इसका भी डायरेक्शन इनवर्ड है और इसका भी डायरेक्शन इनवर्ड है। तो जब दोनों का डायरेक्शन इनवर्ड है और डायरेक्टेड इनटू द प्लेन है तो हम लोगों ने दोनों को ऐड कर दिया। हालांकि आप चाहें तो इनवर्ड नेगेटिव साइन भी अप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ माइनस हो जाएगा। एंड अगेन इन द राइट हैंड साइड ऑल्सो इक्वेशन पे आपके पास माइनस रहेगा तो उसको एलिमिनेट किया जा सकेगा। तो हम लोगों ने फिलहाल इनवर्ड को पॉजिटिव ले लिया, ऐसा भी कह सकते हैं। तो एक हो गया ट्रांसलेशनल एंगुलर मोमेंटम, एक हो गया रोटेशनल एंगुलर मोमेंटम। तो एक ट्रांसलेशनल एक रोटेशनल, दोनों का डायरेक्शन सेम, तो हम लोगों ने दोनों को ऐड कर दिया। एंड नाउ वी आर सेइंग दैट ये जो है ये ऊपर की तरफ आ गया और फिर ये रोटेट कर रहा है। तो वी आर राइटिंग इट एज कि जब ये रोटेट कर रहा है देन इट इज़ 2/5 mr² ओमेगा फाइनल एंड mvr, where v is the final velocity which we are looking for। तो इसको अपने v नॉट कर देते हैं जो हम लोग खोज रहे हैं। तो अब अगर इसको हम लोग फिलहाल और सॉल्व करें तो वी कैन से ओवर हियर दैट ऑल दी m कैंसल आउट, विच एवर फॉर्मेट आई हैव रिटन m, स्मॉल m और कैपिटल M, they are all the same in this particular problem। and over here we can also take this one as v naught as ओमेगा, और अपने r के टर्म्स में अगर अपने लिख दें तो v इक्वल टू r ओमेगा अगर हम लोग लिख देंगे तो ये हो जाएगा r² ओमेगा फाइनल। तो यहाँ पे थोड़ा सा और अगर हम लोग इसको सुलझा लें तो ये हो जाता है 0.8 rv प्लस 2vr/5, दिस इज इक्वल टू 2/5 r² ओमेगा फाइनल प्लस, और इसको हम लोगों ने r हटा दिया है तो ये हो गया ओमेगा r², ओमेगा फाइनल r²। तो अब अगर हम लोग इसको देखें तो ये r कैंसल आउट हो जा रहा है। एंड वी आर कैलकुलेटिंग ओमेगा फाइनल। तो ओमेगा फाइनल कैन बी कैलकुलेटेड इन दिस वे। तो 0.8 और ये हो गया 0.4, तो हो गया 1.2v इज इक्वल टू, और ये हो जा रहा है 1.4 और ओमेगा फाइनल r² और r ओमेगा फाइनल, and from here omega final can be written as 6v/7r। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर जो हम खोज रहे हैं। तो दिस इज़ द फाइनल आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। कि अगर हम लोग ऐसे किसी प्रॉब्लम को एनकाउंटर कर रहे हैं जहाँ पे रोटेशनल कोलिजन हो रहा है, तो रोटेशनल कोलिजन के दौरान बहुत ही बढ़िया चीज़ है कि अपने एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएं। किस पॉइंट से लगाएं वो बड़ा इंपॉर्टेंस रखता है कि किस पॉइंट के अबाउट हम लोग एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन की बात कर रहे हैं। तो क्योंकि ये जो स्फीयर है जब ये आकर के स्ट्राइक करेगा तो पॉइंट P पे स्ट्राइक करेगा, और सारे फोर्सेस जो हैं जो एंगुलर इम्पल्स प्रोवाइड करेंगे या जो कुछ भी होगा वो सारे सिलसिले पॉइंट P पे हो रहे हैं। इसीलिए हम लोग पॉइंट P के अबाउट टॉर्क ले रहे हैं, ताकि पॉइंट P पे अगर कोई फोर्सेस लग भी रहे होंगे तो नेट टॉर्क उसके वजह से कॉन्ट्रीब्यूशन 0 हो जाएगा, और फिर अपने एंगुलर मोमेंटम इनिशियली एट पॉइंट P इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम एट पॉइंट P कर पाएंगे। और एंगुलर मोमेंटम जब अपने लिख रहे हैं तो इस बात का भी ध्यान रखा जाए कि ट्रांसलेशनल और रोटेशनल दोनों मिला के लिखें। और हम लोग ये मान ले रहे हैं कि तुरंत ही प्योर रोलिंग वापस से इनिशिएट कर देता है सॉलिड स्फीयर।
जस्ट आफ्टर द इम्पैक्ट, और उस आइडिया को दिमाग में रख कर कि हम लोग ओमेगा फाइनल यानी कि 6V/7R कैलकुलेट किए, इसको मार्क कर दिया जाए आंसर में। तो दिस इज मैचिंग विद द थर्ड ऑल्टरनेटिव 6V/7R. So this is the problem which we tried to solve. It was NCEP 2025 problem based on एंगुलर कोलिजन, या अपने ऐसा कह सकते हैं कि अपने सर रोटेशनल मैकेनिक्स में रोटेशनल कोलिजन को लेकर के अपने एक सवाल सॉल्व किए।